We are starting the ions. You can see here that that atoms of different elements combine to form the molecules of the compounds, as we have already discussed these elements, molecules and the compounds. So now we will discuss about the ions first here, then we'll go with the again repeat and revise the previous topic, atoms, molecules and elements. Okay, now we came here in the topic of ions. This can happen in more than one way. Let us take the example of common salt. The common salt is a namak which you use at home. So the name of the namak is called sodium chloride, or we can give a name of NaCl. NaCl. Na is a sodium, Na is a sodium, and Cl is a chloride. Cl is a chloride. Okay, the sodium chloride. So all together, when they combine together, so that is called the compound. That is called the compound, and we can say that is an common salt, right? Now that is called the ions. So ions is produced in a two form. That is, first we will say that what is the ions. Okay, ions is explained here with the definitions. That is, an atom of sodium combines with an atom of chlorine to form molecules of sodium chloride. During the process, the sodium atom loses an electron, which is negatively charged, and becomes positively charged, written as n plus a charged particles atom. That means a charge. What is written here? A charged atom is known as ions. A charged atoms which is known as ions. So what we have here, that is a charged atom. The charged atom is known as ion. The charge में क्या होता है? आपका चार्ज होता है. अगर आपका चार्ज है तो चार्ज का दो होता है, आपका पॉजिटिव होता है और ये आपका नेगेटिव होता है. ठीक है, POSITIVE. पॉजिटिव में सिर्फ VE लिया है, पॉजिटिव में प्लस VE आएगा, नेगेटिव में माइनस VE आएगा. ठीक है, इतना क्लियर है. तो आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज एटम्स बोलते हैं. ठीक है, आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज एटम्स. आयंस इज व्हाट? आयंस इज अ charge atoms is known as ions. Okay, so in the case of the charge atom, there is two types of charge atoms we have here. The first is cation and the second is anion. तो आपका क्या होगा? आयंस में दो पार्ट है. तो फर्स्ट आ गया कैटायन, आ गया, उसके बाद आ गया एनायंस. ठीक है, पहले कैटायन आ गया, उसके बाद क्या आ गया? एनायंस आ गया. ठीक है, तो आई विल डिस्कस दिस केमिकल कंपाउंड ऑल्सो. वेट, पहले आ गया आपका कैटायंस आ गया, उसके बाद आपके आ गया एनायंस. तो कैटायंस क्या होता है? तो आयंस आ गया आपका, देयर इज एन चार्ज एटम्स इज कॉल्ड द एनायंस. आयंस, charge atom. The charge atom is called the ions. Now the ions are divided into two different categories. The first is a cation, the second is anions. Cation is what? A positively charged ion is called an cation, and the negatively charged ion is called the anions. So cat, 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 AN, any. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया? जब कैट आता है, कैटायन आता है, तो यहाँ आपका पॉजिटिव आ गया, और एनायन जो आता है आपका ये नेगेटिव आ गया. ठीक है, तो आपके पास दो चार्जेस है आयंस में. द आयंस आर डिफाइंड एज एन चार्ज पार्टिकल्स और द चार्ज एटम्स. द आयंस आर डिवाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, दैट इज इन कैटायंस एंड द एनायंस. ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे. तो एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे हम लोग के पास एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है मेटल्स एटम्स जनरली लूज इलेक्ट्रॉन्स. मेटल एटम्स, सो आपके मेटल्स एटम्स क्या है? सोडियम, क्लोरीन, सिल्वर, जिंक, ठीक है, मैग्नीशियम. दिस ऑल आर कम्स इन द मेटल आयम्स. मेटल, दिस ऑल आर कम्स इन द मेटल्स. ठीक है, तो मेटल्स एटम जनरली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम कैटायन. सो अगर आपके पास, मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी एटमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई भी एटमिक स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या होता है आपका अगर एटमिक स्ट्रक्चर है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका बाहर का एक्सिस हो गया. ठीक है, तो ये जब बाहर का एक्सिस हो गया, जो ये लास्ट शेल है, तो लास्ट शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूज़ करके, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? मेटेलिक एलिमेंट एटम जनरली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम कैटायंस. तो इफ दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स, देन विल कन्वर्ट एज एन what? Cations. Okay, so they'll become as in cations.
they'll become as a cations. When they will lose the metallic atoms, this is called the metallic atom. If the sodium is there, when they lose the electrons, then it is called the what? Then it is called the what? Cations. When they lose the electrons from the last shell, यहाँ से lose नहीं हो रहा, यहाँ से लूज़ होगा, ठीक है, बाहर से यहाँ पे फर्स्ट शेल या सेकंड शेल या थर्ड शेल, इसमें से आपका लूज़ होता है, ठीक है. तो आपका ये जो लास्ट शेल है, अगर लास्ट शेल के यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन कोई लूज़ हो रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड द व्हाट? कैटायंस. दे विल कन्वर्ट इनटू अ कैटायंस, ठीक है. आगे बट इज क्लियर नाउ, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? द लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम कैटायन. जनरली मेटलिक एलिमेंट्स, मेटल हम लोग, मैंने क्या बोला था, मेटल क्या होता है? सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, मैंगनीज भी होता है मेन, ठीक है, जिंक होता है, ठीक है, उसके बाद आयरन भी होता है. इस ऑल कॉल्ड द मेटल्स. तो मेटल से अगर लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स घटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायंस बोलते हैं. Though hydrogen is a non-metal, it forms a cation. So why it is a hydrogen? Because hydrogen is only an atoms which and the molecule which is mixing with the other atom and the molecules which forms a compound. So that's why the hydrogen, though it's a non-metal, but also being a non-metal, it loses electrons and forms the what? Cations. तो इसमें हम लोग को क्या है, क्वेश्चन में आ सकता है, नेम एन एटम which or the name and non-metal which loses electrons and forms the cation. So we can say the hydrogen, ठीक है. ये fill in the blanks में भी आ सकता है आपका, ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट में आपका एनायन है. तो एनायन, a negatively charged ion is called an anion. The negatively charged ion is called the anion. The atoms of the non-metals and the metalloids. नॉन मेटल्स आपको मालूम है, नॉन मेटल्स क्या होगा? प्लास्टिक हो गया, ठीक है, आपका दे आर कॉल्ड द नॉन मेटल्स. तो अगर नॉन मेटल्स है और मेटलॉइड्स है, द मेटलॉइड्स इज व्हाट? द मिक्सअप ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स इज कॉल्ड द व्हाट? मेटलॉइड्स, ठीक है. The mixture of the metals and the non-metals is called the metalloids. So we have here the atoms of the non-metals and the metalloids generally gain electrons to form. तो यहाँ पे कैटायन में क्या हो रहा है? लूज हो रहा है. कैटायन में लूज हो रहा है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? लूज हो रहा है. तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. और यहाँ पे गेन हो रहा है, ठीक है. एनायन में क्या होता है? आपका गेन होता है. तो गेन में क्या होता है? आपका नेगेटिव होता है. नेगेटिव होता है. गेन में क्या हो रहा है? आपका नेगेटिव होता है. सो दैट इज कॉल्ड द व्हाट? That is called the anions. Okay, so anions means what? Negatively charged ions. Negatively charged ions is called the anions. And how the anions is formed? When the atoms of the non-metals and the metalloid generally gain electrons to form the anions. You will learn about other modes of the molecules formation in higher classes. So that you will learn in the higher classes after this related topics. Okay. आयंस एंड इतना बड़ा टॉपिक नहीं है. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक, सो डोंट बॉदर दैट द टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग. ओके, now come to the polyatomic. I think that one page is missing here because 48 49 ठीक ही है, 48 49. Now polyatomic ions, some groups of यहाँ पे क्या लिखा है? The some groups of atoms behave as one unit in a chemical reaction. Such groups में अभी groups बोला गया, ठीक है. They are asking, they are saying that there is a group. तो ग्रुप्स मतलब क्या होता है? सिंगल एटम्स तो ग्रुप नहीं बना सकता है. सो दैट मीन्स यहाँ से एक से ज़्यादा होता है, दैट मीन्स मोर देन वन और मोर देन टू और मोर देन थ्री. सो दैट इज कॉल्ड द पॉली एटमिक. पॉली मतलब यहाँ पे फिक्स नहीं दिया हुआ है. पॉली इज़ नॉट अ फिक्स्ड ईयर. पॉली इज़ नॉट अ फिक्स. पॉली हम लोग के पास अगर मोनो होता है तो हम लोग मालूम होता है सिर्फ एक है. डाई होता है हम लोग को मालूम होता है कि यहाँ पे सिर्फ दो है. और ट्राई होता है तो हम लोग को मालूम होता है कि यहाँ सिर्फ तीन है. तो यहाँ पे क्या लिखा है? पॉली बोला है. तो पॉली मतलब क्या होता है? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है. सो देयर इज नॉट फिक्स्ड दैट हाउ मेनी एटम्स और हाउ मेनी दिस एलिमेंट्स और द मॉलिक्यूल्स इज कंबाइंड टुगेदर. ओके, सो दैट्स व्हाई it is said as the polyatomic ions. A group of atoms that carries an overall charge. पॉजिटिव भी चार्ज कर रहा है और नेगेटिव भी चार्ज कर रहा है, ठीक है. तो पॉजिटिव भी चार्ज कर रहा है, नेगेटिव भी चार्ज है. तो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. तो यहाँ पे अगर
पॉजिटिव कैसे आता है, पॉजिटिव कैसे आता है, अगर आपके पास नेगेटिव है, अगर आपके पास नेगेटिव है, ठीक है, अगर आपके पास नेगेटिव है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरी जगह, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा ना। ये जो माइनस है, अगर यहाँ आपके पास दो माइनस साइन है, ठीक है, दो माइनस साइन है, मान लो दो माइनस है, नेगेटिव है, अगर यहाँ से अगर दो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव, अगर इफ़ देर इज़ नथिंग इज देयर देन देर इज इन पॉजिटिव। जिस तरह से मैथ्स में होते हैं 2+1, तो यहाँ 2 के आगे तो कुछ नहीं है, दैट मीन्स वी हैव टू अज्यूम देर इज़ अ प्लस, राइट और नॉट। इफ़ देर इज़ नो साइन देन वी हैव टू थिंक देर इज़ अ प्लस साइन। और माइनस में तो वहाँ पे दिया ही होता है कि यहाँ पे माइनस है बोल के। अगर यहाँ पे नीचे में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि वी हैव नीड वन साइन दैट व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट सॉल्यूशंस वी हैव टू डू, आइदर इट इज़ अ नेगेटिव और द पॉजिटिव और एडिशन और द सब्ट्रैक्शन। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न दे हैव गिवन दैट साइन डाउन। बट ऊपर में अगर खाली है तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि क्या है, वहाँ पे प्लस साइन है। उसी तरह से अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव आ जाता है। अगर यहाँ से कोई ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, पॉली एटमिक आयंस। पॉली एटमिक आयंस, देयर इज मेनी ऑफ द पॉली एटमिक, द हाइड्रोजन इज देयर, द पॉली दिस वन एटमिक पॉजिटिव, ओके। कैटायंस इसको बोलते हैं, क्योंकि कैटायंस क्यों है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो ट्रांसफ़र हो गया दूसरे की जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या हम लोग को जानते हैं, तो मैग्नीशियम में 2 आ रहा है, कैल्शियम में 2 आ रहा है, जिंक में 2 आ रहा है, एल्यूमिनियम में 3 आ रहा है, और दिस वन एमोनियम आयंस में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। सो दिस आर द थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो इसकी वजह से इट इज़ कॉल्ड दी पॉली। इट इज़ नॉट फिक्स दैट देर इज 1 1 1 1 1 1 1, ओके। इट कैन बी 1 ऑल्सो, इट कैन बी 2 ऑल्सो, इट कैन बी 3 ऑल्सो, इट कैन बी 4 ऑल्सो। सो एनी नंबर कैन बी और could be, that's why it is said as a polyatomic ions. Now we have very important topic to see, that is यहाँ पे आयन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कैटायन का फॉर्मेशन दिया हुआ है और यहाँ पे एनायन का, यहाँ पे नेगेटिव का दिया हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव का दिया हुआ। सो यू हैव टू गो थ्रू विद दिस, यू हैव टू लर्न दिस टेबल, ओके। और यहाँ पे क्या था, द डिफरेंस बिटवीन एटम्स, molecules and ions. Atoms, molecules, this is very very important topic. If you learn this, if you read out these topics, you will definitely I'm confident that you will understand the topic which we have did today, okay. So whatever we have done today, so you can easily illustrate, elaborate, and you can understand yourself what does this atom, molecules and the ions means here. So when you read out this one, try to write and learn both you do, so that will be easy for you to understand and to memorize the things, okay. That's it for today. So whatever you have understood, tell me. If you didn't understood still some of the topics, then send me that topic with the paper, and after this exam we'll continue the classes taking Hindi, maths, English, and this science subjects, okay. Thank you.